Namaste, Assalamu alaikum, hello, hope you are well and doing good. In this video, we will talk about style and its traditional, modern, and linguistic concept. Other than that, we will also look into the roots and who were the actual predecessors of stylistics or who were the actual owner of this word style. In our earlier video, we have talked about stylistics. And as I have explained it earlier as well that in Hindi we call stylistics शैली विज्ञान. तो जो स्टाइल होगा उसे हम शैली का इल्म कहेंगे, स्टाइल का इल्म कहा जाएगा और उर्दू में इसे हम कहते हैं असलूब. वैसे स्टाइलिस्टिक्स को जैसे हमने ट्रांसलेट किया था असलूबियात या तर्ज बयान, तो जो आपका स्टाइल होगा दैट वुड बी कॉल्ड असलूब. This video is really important for students of bachelor's and master's because there can be certain MCQs from this video in your papers for lectureship. Other than that, you have this course in your BS or master's. तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत important है. I have tried to compile data from different websites, from different books and resources ताकि आप इस concept को बहुत अच्छी तरह समझ लें. The objective of stylistics is to study style. As we have discussed in our first video कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है स्टाइलिस्टिक्स का वो स्टाइल की एनालिसिस है, स्टाइल को स्टडी करना है. This term is not much loved by linguists because of its multiple and vague connotations. There are number of definitions of this term and there are number of connotations associated with this term. That is why it is not much loved by the linguists. क्योंकि एक तो कोई दूसरी तरह से इसको डिफाइन कर रहा है. देयर इज अनदर लिंग्विस्ट हु इज डिफाइनिंग एंड एक्सप्लेनिंग इट इन अनदर वे. सो दैट इज व्हाई आई हैव कंपाइल्ड डेटा फ्रॉम ऑल डिफरेंट सोर्सेज जहां से मुझे इसका डेटा मिल सकता था, ताकि जब भी अब कभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई MCQ या फिर कोई डेफिनेशन एक्सप्लेन करने को आ जाए तो आप उसे एक्सप्लेन कर सके. बट फॉर दैट यू नीड टू लिसन दिस प्रेजेंटेशन टिल द एंड. If we look at its etymology means कि ये word कैसे drive हुआ, कैसे बना, तो हम देखते हैं कि it is derived from Latin word. ये आपका Latin word से drive हुआ है which that is stylus, that means pen. तो अगर देखा जाए स्टाइल एक्चुअली डील्स विद द रिटन लैंग्वेज. इट इज वन ऑफ द ओपिनियंस के स्टाइल जो है वो रिटन लैंग्वेज के साथ डील करता है या मूड ऑफ एक्सप्रेशन के साथ डील करता है. बट दैट इज नॉट ओनली द केस, लेकिन जो इसकी एटमोलॉजी है उसके मुताबिक इसको इसी तरह कंसीडर किया जाता है. So we can say it is analysis of written language, but that is not only the case. Two main aspects that are very widely associated with stylistics are style as choice and style in preference to something else. अगर हम इसकी सब definitions का analysis करें तो at the end we would be having 2 to 3 basic points, and the first point would be style as choice, because we always have certain choices and we choose from those choices. हम उन choices में से select करते हैं, choose करते हैं in order to convey our own ideas, in order to convey our thoughts. Likewise, style in preference to something else. We give preference to one word in comparison to another expression. हम एक expression की बजाय दूसरे expression को preference देते हैं. Why is it so? There is involvement of cognition, there is involvement of affective factors है. इसमें आपके psychology, आपकी personality, आपके character, इन सब का role होता है. And most importantly, the basic function or the context plays the role in the selection of certain choices. आपका जो context होता है या जो आप function perform कर रहे होते हो वो आपकी choices में बहुत role play करता है. Okay, let us analyze some of the common connotations associated with style as given by a dictionary of literary terms. The characteristic manner of expression in prose or verse. How you are expressing yourself, it deals with, it is a style. How a particular writer says things, कि एक writer ने किस तरीके से किसी भी चीज को बयान किया है. The analysis and assessment of style involves examination of writer's choice of words. But when we are analyzing or when we are doing assessment of any style, we have to see these things. So this means these things are forming style. तो ये भी आपके पास कह सकते हैं कि ये चीजें भी style बनाती हैं. Choice of words, its figures of speech, the devices, for example rhetorical devices
चेंजेस हो जाती हैं. The shape of his sentences and the shape of his paragraphs, whether the sentences are long, whether the sentences are complex, compound complexes, are the sentences are simple, and the shape of his paragraph, whether the paragraphs are long or whether the paragraph just consists of one sentence even. Indeed, of every conceivable aspect of his language and the way in which he uses it. तो हम उसकी लैंग्वेज को हर लिहाज से जब एनालाइज करते हैं तो वो आपका स्टाइलिस्टिक्स एनालिसिस बनता है और ये तमाम एस्पेक्ट्स उसका स्टाइल बना रहे होते हैं. Style defies complete analysis or definition. It is the tone and voice of the writer himself, as peculiar to him as his laugh, his walk, his handwriting, and the expression on his face. This is really important. It is, we can say, but as a researcher, we try our best, but it is really tough to have complete analysis or complete definition of style of any particular writer, because if we are not using like computational stylistics or corpus stylistics, one of the branches of stylistics, it is really tough to analyze all the words that we have selected, because it is not possible for hand and eye approach. ये आपके लिए बड़ा tough होता है. और उसके अलावा कि it is also tough to understand the attitude of the writer. ये attitude उसका समझना भी मुश्किल होता है. But in our modern approach and in our linguistic concept of style, हम इस चीज़ को negate करते हैं. ये actually ये जो last two lines हैं ये आपकी traditional concept के साथ भी कुछ associated है. आगे चलते हैं. मैंने यहाँ पे जितनी मेन टर्म्स या कैटेगरीज या नोशंस जो आपको अंडरस्टैंड कर ज़रूरत है अंडरस्टैंड करने के लिए स्टाइल की, आई हैव रिटन देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन थॉट एंड लैंग्वेज. What is in your mind and when you are expressing those words through language is basically a style, an individual manner of making use of language. You might have heard about idiolect, personal or individual dialect of a particular person. Likewise, every person has certain choices. Every person wants to convey the same thing through different choices. तो जो उसका manner of expression है, किस तरह वो language को इस्तेमाल करता है, किस तरह वो manipulate करता है different devices of language को in order to convey his thoughts, in order to convey his ideas, तो वो आपका style होगा. The set of rules how to write a composition, there are certain rules, there are certain norms that have been shaped and we used to follow those norms. For example, if we talk about Aristotle and his poetics, we will find out कि उसकी जो poetics है उसमें there are certain rules, और जो Greek playwrights थे mostly they were following those rules. And likewise, as Sophocles has followed all of the rules, or you can say most of the rules of Aristotle's poetics, and that is why he says that he appreciates Sophocles' plays as well. Okay, moving on, the aesthetic function of language, it deals with aesthetics because we have to appeal the reader, or we have to appeal the listeners as well. Expressive means in language, synonymous ways of rendering one and the same idea. Emotional coloring in language, a system of special devices called stylistic devices, जिसके ऊपर बहुत focus किया जाता है. The splitting of literary language into separate systems called styles. The individual manner of author in making use of language. Style is the man himself. This concept is really important. Why? Because this concept has already will be explained in what you say traditional concept of stylistics. वो कहते हैं कि जी style जो है वो एक particular man से associated है. It is only associated with the writer. वो उसकी personality से associated है. तो वो ये थोड़ा सा intuitive और instinctive subjective approach है style की तरफ से. Style is depth, style is deviation. As I have already told you, there are norms that we have to follow, as there are rules that we have to follow. Likewise, there can be deviation from those norms. हम उन norms से deviate कर सकते हैं. And for example, we can invent new words. We can break the actual pattern of subject and predicate, or subject, verb, object, and we can break this rule of English language. Or we can go on and on and on. We can write
मल्टीपल सेंटेंसेस, तो वो आपका एक ही सेंटेंस इतना बड़ा हो सकता है, तो ये आपका डेविएशन में हो जाता है। जैसे आप पैरेललिज्म ले सकते हैं, उसके बाद जो है आप जो है एलिट्रेशन के थ्रू, कॉन्सोनेंस के थ्रू, एजोनेंस के थ्रू ये आप डेविएशन वगैरह करते हैं। स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ एन ऑथर्स इन कंपेलिंग लैंग्वेज टू कन्फर्म टू हिज मूड ऑफ एक्सप्रेशन। ये हम पहले भी इसी चीज के ऊपर बात कर चुके हैं। स्टाइल इज कॉन्टेक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड लिंग्विस्टिक वेरिएशन. This is also important because this is associated with the modern concept of stylistics. Modern concept of stylistics says that our style or our choices are actually contextually restricted. Our context determines what we have to say. Our functions determine what we have to say at any place. हमने हमारे functions या हमारा context determine करता है कि हमने क्या बात करनी है. Style is a selection of non-distinctive features of language. Style is simply synonymous with form or expression. आप उसके अलावा अगर देखें structures, sequences and patterns which extend beyond the boundaries of individual sentences, ये सारे आपका स्टाइल बनते हैं. You would say that कि ये जो ज़्यादातर टर्म्स हैं ये आपस में टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि मुझे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस मिल सके मैं उनको जॉट डाउन करूँ ताकि आपको उनकी समझ आ सके. जैसे ये एनकेविस ने कहा, ये ब्लूमफील्ड ने कहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा. आफ्टर द एनालिसिस ऑफ ऑल दीज टर्म्स, जब हमने इन तमाम टर्म्स का एनालिसिस किया तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ डोमेन्स में अपनी इन तमाम टर्म्स को. One of it is style is choice. Secondly is description of style, or when we prefer one thing over another, एक ये. और तीसरी चीज स्टाइल एंड नॉर्म. इन तीन बातों को अगर हम समझ ले तो हमें ये तमाम जो मेन टर्म्स और कैटेगरीज हैं हम इसे समझ सकते हैं. स्टाइल इज चॉइस. We always have heard of words, but we choose some particular words from a range of alternative ways for conveying particular meanings in a particular context. हमारे पास बहुत से वर्ड्स होते हैं हमारे, बट वी ऑलवेज पिक अ सर्टेन वर्ड इंस्टेड ऑफ अदर वर्ड्स because we have to convey a particular expression and according to a particular context. हम किसी खास जगह पे कोई खास वर्ड का इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं जो हमारे इमोशंस और हमारे जो तासुरात होते हैं उसकी अक्कासी कर सके. Different choices express different nuances of meaning. For example, notice the differences between the usage of buy and purchase. अब हमने तो यही सुना है कि buy and purchase जो है वो दोनों almost same meaning देते हैं. But there must be some difference between these two expressions. That is why we have two different words. तो ये अब you have to find out and you have to tell me in the comment box. As you see, I have put some dots that shows that you have to put something into it, and you can put it by writing the answer in the comment box. Other than this, we have noticed that our choices are also predetermined. Language determines thought. एडवर्ड सैपर की जो आप थ्योरी पढ़ते हैं कि हमारा जो है जो थॉट होते हैं, लैंग्वेज डिटरमिन्स थॉट एंड थॉट डिटरमिन्स आर लैंग्वेज, दोनों एक दूसरे के ऊपर रोल प्ले कर रहे होते हैं. Likewise, our culture influences us. Our culture determines what choices we have to use. For example, if you are at the death of someone, what words you are going to use? You are not going to laugh. You are not going to create jokes. You would be talking seriously. But when you are in a party, then you would be cracking jokes. You would be laughing. Your language would be informal. तो आपका जो कल्चर है, आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सिलेक्शन ऑफ योर चॉइसेस. द फंक्शन दैट द स्पीकर इज परफॉर्मिंग थ्रू द वर्ड्स दैट ही और शी अटर्स डिटरमिन्स आवर एक्सप्रेशंस. दैट इज व्हाई वी कॉमनली से दैट द स्टाइल ऑफ फॉलोइंग author is appropriate and inappropriate. For example, if I am reading work of any author और मैं उसमें वो मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं या जो मेरे इमोशंस हैं उनको वो अपील नहीं कर रहा, then I would say that his style is not appropriate. यहाँ अगर कोई अपील कर रहा तो हम कहेंगे his style is appropriate. For example, someone who is a strong believer of the norms of society, who is a strong believer of religious norms, religious values, चौसर के टाइम पे अगर वो हो मौजूद हो और वो रिलीजन को इस तरह, एंड व्हेन ही वुड रीड चौसर, ही वुड से दैट चौसर हैज प्रेजेंटेड द कैरेक्टर्स और हिज स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इज इनअप्रोप्रिएट. तो ये किस बात पे डिसाइड हुआ? ये सारा इन वर्ड्स के ऊपर आपका डिसाइड होता है.
Style is described in reference to something else. The spellings are wrong, you have to correct it out. Style is described in reference to something else. Style can also be described by comparing it with style of another text. अगर हमने किसी एक स्टाइल को, किसी एक ऑथर के स्टाइल को जज करना है, उसके हमने तर्ज बयां को देखना है, उसके हमने शैली को देखना है, उसके बारे में हमने पढ़ना है, तो हम उसे किसी और ऑथर से या उसके जो जॉनरा है उसको हम किसी और जॉनरा से कंपेयर करके चेक कर सकते हैं. जैसे अगर हम कहें कि हम चलें जो लेट अस टॉक अबाउट जेफरी चॉसर, तो उसका स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था, फिर उसके साथ के जो कंटेम्प्रेरीज थे, जॉन गॉवर वाज देयर, विलियम लैंगलैंड वाज देयर, तो हम उनके साथ कंपेयर करके भी इसे देख सकते हैं. स्टाइल एंड द नॉर्म. There are certain rules that have been set by the traditionalists or that have been set by the critics, and authors mostly try to follow those rules. जिस तरह मैंने अरिस्टोटल की बात की, and after Aristotle we have बेसिकली न्यू क्लासिकल एज या रेनेसा आ जाए, रेनेसा के बाद न्यू क्लासिकल एज आ गई, एंड देन वी हैव रोमांटिसिज्म. तो हम जब इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, या विक्टोरियन एज, ऑलवेज देयर वर सर्टेन रूल्स. जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा दैट whatever new classicist has done is wrong. कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, their style is not good. Why? Because William Wordsworth has given his own theory of poetic diction. तो उसने अपनी own theory present की, अपनी उसने एक theory present की, तो मतलब वो norms को कुछ, and when we follow those norms, this means our style is conforming to those norms. और जब हम उससे deviate करते हैं तो वो आपका डेविएशन के जुमरे में आ जाएगा. Some writers define style as individual characteristics of a text or the total sum of deviations from a norm. For this we need to understand what is the norm. तो हमें इसके लिए समझना होगा कि norm है क्या चीज़, तो फिर ये वही रूल्स जो हम लोग सेट करते हैं. तो आई थिंक सो इट वुड बी क्लियर. आगे चलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म और स्टाइलिस्टिक्स पे. ये मैंने खुद से इसमें ऐड किया है ताकि आपको समझ आ जाए. I also personally like literary criticism, but there are certain things that are not good in literary criticism. Whenever we are doing criticism of any text, we are mostly intuitive and subjective, and we also do not pay heed to most of the aspects that we have selected for analysis. हम हर चीज़ को जो हमारा डेटा होता है उसे हम ओवरऑल भी एनालाइज नहीं कर रहे होते. बट अगर हम स्टाइलिस्टिक्स को इस टर्म में के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, जिसे आप कहते हैं अब लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स, इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाए, देन वी हैव वेरी गुड, देन वी कैन हैव वेरी गुड रिजल्ट्स. तो हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं. और स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली जो एनालिसिस है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है. इट इज़ लेस इंट्यूटिव बिकॉज इट इज़ मोस्टली डिपेंडिंग ऑन द डेटा जो हमने सिलेक्ट किया होता है, उसके एनालिसिस पे वो डिपेंड कर रहा होता है. अब हम चलते हैं इसके रूट्स और प्रेडिसेसर्स की तरफ. अगर हम देखा जाए एंशियंट ग्रीस में रेट्रिक एंड डायलैक्टिक्स एंड पोएटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे. लेकिन rhetoric was considered, as you know, rhetoric was considered as the art of creating speeches, and dialectics dealt with discussions, dialogues and debates. इसके साथ तो अगर देखा जाए ये दोनों जो हैं, rhetoric और जो dialectics थे, ये दोनों डेवलप हो गए आपके stylistics में, या स्टाइल के साथ ये बेसिकली डील कर रहे थे. लेकिन जो आपकी पोइटिक्स है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डेवलप हो जाती है. इन एंशियंट रोम, अब देखें जी, ग्रीस के अंदर हमने देखा जी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं. लाइकवाइज इन एंशियंट रोम अगेन वी हैव टू ग्रुप्स. सीजर एंड द फॉलोअर ऑफ सीजर्स वर एनालॉजिस्ट हु स्ट्रेस्ड रेगुलरिटी एंड रूल्स ऑफ द सिस्टम. जो कहते थे भाई हमने रूल्स जो सेट कर दिए गए, वी हैव टू फॉलो द सेम रूल्स, और देयर इज नो नीड ऑफ एनी वर्बोसिटी, देयर इज नो नीड ऑफ एनी फ्लावरी लैंग्वेज, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑर्नामेंटेशन. तो ये इस चीज़ के फॉलोअर्स थे. इन्हें हम एनालॉजिस्ट कहते हैं और सीजर्स के फॉलोअर्स भी कहा जाता है. ये इंपॉर्टेंट है. सिसेरो एंड एनामलिस्ट जो थे, they stood against the ideas of analogists. इन्होंने कहना शुरू कर दिया that we need to use flowery language, we need to create deviation from the norms. उन्होंने इस तरह प्रेजेंट किया. मूविंग ऑन, रेनेसा में स्टाइल एज ए ड्रेस ऑफ थॉट कंसीडर किया जाने लगा. ये भी आपका ऑर्नामेंटेशन के साथ, एस्थेटिसिज्म के साथ इसको एसोसिएट किया जाने लगा. ऑथर्स ट्राई टू अटैच देमसेल्व्स, और ऑथर्स ट्राई टू अट्रैक्ट readers or listeners by using certain devices.
इस तरह की कुछ ऐसी डिवाइसेस, एस्थेटिक डिवाइसेस यूज की जाने लगी जिससे वो रीडर्स को अट्रैक्ट कर सके। मॉडर्न एज स्टाइल इज कंसिडर्ड टू वेरी एज द कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ आवर कम्युनिकेशन वेरीज। तो स्टाइल उन्होंने मॉडर्न एज में, ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स है जिस पे अभी हम बात करेंगे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी जैसे जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट वेरी करता है लाइकवाइज आर स्टाइल वेरीज। अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, ये पूछे जाते हैं जी। जीएन लीच ने अपनी बुक स्टाइल इन फिक्शन में इनके बारे में बात की है कि ये क्या है जी स्टाइल के बारे में। आप यू वुड बी सेइंग दैट स्टाइल इज टोटली फुल ऑफ कंफ्यूजन एंड कंट्रोवर्सीज, देन व्हाट इज द यूसेज ऑफ दैट। लेकिन वी हैव टू लुक स्टाइल फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स। अब डुअलिज्म पे सबसे पहली जो वो बात करते हैं, वो कहते हैं जी जैसे आप सिंपल कहते हैं जी जिस्म और रूह एक अलग चीज है, form and meanings are different things. This concept is originated from Aristotle's literary theory, style as choices of manner rather than matter. Matter और manner of expression वो कहते हैं जी आपके पास different चीज़ है कि आपने जो way of writing है या जो mood of expression है वो different हो सकता है, आपका content vary कर सकता है, आपका ये जो matter होगा वो different होगा। Style को दूसरी चीज़ इसमें ये कहा जाता है कि style is considered as dress of thought, ये रेनेसां में कहा गया। और why it is called dress of thought, it makes some kind of adornment of thought or meaning. The aesthetics of form tends to attract the reader's attention more than the meaning does, as seen in। तो उन्होंने कहा जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो ज़्यादा रीडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन जो आपका एक्सप्रेशन है, जो आपकी चॉइसेस हैं, जो आपकी फॉर्म्स हैं, वो ज़्यादा मैटर करती हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं जिससे आपको समझ आ भी जाएगी। मूविंग ऑन टू मोनोइज्म। अब ड्यूअलिज्म में जिस तरह उन्होंने दो पोल्स की बात की, लेकिन मोनोइज्म वालों ने कहना शुरू कर दिया देयर आर नॉट टू डिफरेंट पोल्स, फॉर्म एंड मैटर इज द सेम थिंग। फॉर्म एंड मीनिंग, फॉर्म एंड मैटर, मैनर एंड ऑफ एक्सप्रेशन एंड मैटर, ये दोनों एक ही चीज है। इन्होंने कहा जी बॉडी एंड सोल आर वन। तो इसके लिए दिस थ्योरी इज इंस्पिरेशन ऑफ द आइडियाज ऑफ प्लेटो, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डेविड लॉज ने दिया। उसने बहुत अच्छी एक एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल, इफ वन work is written, you wouldn't be able to translate it into another. Yes, we are able to translate, but we are not going to get the same essence. हमें वही essence नहीं मिलता वो जो actual work में मौजूद होता है। Moving on to pluralism. अब उन्होंने कहा जी another view just opposite to the first view is that style must be considered in terms of functions it performs. जो स्टाइल जो फंक्शन एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है, हमें उस चीज से देखना चाहिए। वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दिस के क्या मैनर और मैटर एक है। वी नीड टू कंसीडर दिस के वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। और ये हेलिडे इसमें एग्जांपल आती है इसकी, आइडिएशनल, इंटरपर्सनल और टेक्सचुअल फंक्शंस। आगे चलते हैं जी। अब आज का जो बेसिक टॉपिक था हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल, वो कैसे लेते हैं। इसके बाद मॉडर्न और लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल पे बात करेंगे। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल। स्टाइल हैज बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। अरिस्टोटल, सिसेरो, डिमिट्रियस ट्रीटेड स्टाइल एज द प्रॉपर अडॉर्नमेंट ऑफ थॉट। इस चीज पे मैंने बात की, एक्सप्लेन भी किया, प्रीवियस स्लाइड्स में भी है। इन दिस व्यू विच प्रिवेल्ड थ्रू आउट द रेनेसां पीरियड, डिवाइसेज ऑफ स्टाइल कैन बी क्लासिफाइड। मतलब देर आर डिफरेंट डिवाइसेस। अगर वो इन डिवाइसेस को आप यूज करेंगे, देन योर थॉट और देन योर एक्सप्रेशन वुड बी ऑर्नामेंटेड, और वो बहुत एस्थेटिक अपील करेगा। अगर आप इन डिवाइसेस को फॉलो करेंगे और नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने हमें कुछ रूल्स दे दिए, कुछ नॉर्म्स दे दिए गए कि आपने इनको फॉलो करना है। एक ये चीज़, एंड स्टार्ट थिंकिंग वेदर इट इज़ गुड और बैड, आपको आगे जाके इसका अंदाजा भी हो जाएगा। This traditional literary critical attitude towards style is subjective and unscientific and considers it a writer's intuitive insight into aesthetics. इसकी दूसरी जो मेजर अप्रोच थी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की, वो बड़ी सब्जेक्टिव थी, क्योंकि वो कहते थे कि जो राइटर्स की इंस्टिंक्ट है, इट इज़ ओनली विद हिम दैट ही कैन राइट ऑन द पेज। ये सिर्फ और सिर्फ वो जानता है, ये उसका ओन मैनर ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका अपना अडॉर्नमेंट ऑफ थॉट है। जिस तरह ये स्टिलेस्ट वर्ड है पेन, तो वो एक ही बंदे से वो एसोसिएटेड है। So this would be considered wrong. Why? Because readers wouldn't be able to understand कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो readers तो नहीं ना फिर understand कर पाएंगे। This concept of style is ambiguous because the reader may not share with the writer and critique the level and delicacy of intuitive
perception. It is therefore undemocratic and imperialistic. Style is a writer's individualist mood of expression. ये भी इन्हीं की बात है. Way of putting his conceptions into words. It involves a long list of choices at paradigmatic and syntagmatic axes. Choices of lexical items, use of troops, figures of speech, phrasal and syntactic, and the shape of paragraphs. These choices make the writer an individual as clearly discernible and differentiable as is in the frequency and quality of his voice. अब वो तो कहते हैं कि भाई ये तो फिर ठीक है जी, सिर्फ राइटर तक लिमिटेड है, लेकिन नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट व्हेन वी रीड हिज वर्ड्स, जब हम उसके वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, जब उसने कौन सी पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक चॉइसेस का इस्तेमाल किया, उसने कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया, व्हाट वाज हिज शेप ऑफ पैराग्राफ, वी ऑटोमेटिकली गेट टू नो व्हाट इज हिज स्टाइल. Moving on, it is the whole of the man, the whole of his self that speaks through his style. The style is the man, says Buffon. So style can also be seen as a mark of character and personality. Traditional concept में ये भी consider किया जाता था, whatever author is putting on the page, it is according to his character, it is according to his personality. He cannot speak a lie, तो वो इस चीज़ से हट नहीं सकता, वो अपनी personality को ही depict करता है. आगे चलते हैं. द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ स्टाइल एज समथिंग रिलेटेड टू थॉट कंट्रास्ट विद द आइडियाज दैट ड्राइव फ्रॉम चार्ल्स द स्विस फिलोलॉजिस्ट एंड लिव स्पिट्जर द ऑस्ट्रियन लिटरेरी क्रिटिक. According to followers of these thinkers, style in language arises from the possibility of choice among alternative forms of expression. अब इनके मुताबिक वो जो कहते हैं जी भाई वो तो एक ही बात जो थी उसी को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो आज का मॉडर्न राइटर जो क्रिटिक है, ये मॉडर्न लिंग्विस्ट है, दे से दैट वी ऑलवेज हैव अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, और हम उनमें से कुछ फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करते हैं. जैसे हम कहें कि द राइटर कुड हैव यूज्ड गर्ल, फीले, यंग लेडी एंड यंग वुमेन, तो उसके अब आप ये तो नहीं हो सकता जैसे ही वो स्ट्रिक ऑन वन वर्ड गर्ल और बाकी वो वर्ड यूज नहीं कर सकता. ही और शी कुड हैव नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस, और उनमें से वो अपनी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक वर्ड्स का इस्तेमाल करता है. सो देर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्टाइलिस्टिक्स. ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्टाइल. सेकेंडली देर इज इंट्यूटिवनेस, इंस्ट्रक्टिवनेस, और जो कहा जाता है कि जस्ट इट इज लिमिटेड टू राइटर. इवन इफ इट इज लिमिटेड टू राइटर वी कैन स्टिल एनालाइज हिज स्टाइल बिकॉज द वर्ड दैट ही हैज पुट ऑन द पेज, उससे हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं. ये नहीं इट इज, ये जो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइलिस्ट. मॉडर्न स्टाइलिस्टिक्स यूजेस द टूल्स ऑफ फॉर्मल लिंग्विस्टिक एनालिसिस. ये मैंने अपनी ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स में बताया था. देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ स्टाइल. फॉर्मल स्टाइलिस्टिक्स है और दूसरी आपके पास फंक्शनल स्टाइलिस्टिक्स है. फॉर्मल में जो है आप फॉर्मल फीचर्स के साथ डील कर रहे होते हो, और फंक्शन में आप कॉन्टेक्स्ट के साथ डील करते हो. फॉर्मल लिंग्विस्टिक एनालिसिस ऑक्युपाइड विद द मेथड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. Its goal is to try to isolate characteristic uses and functions of language and rhetoric rather than advance normative or prescriptive rules and patterns. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हमें कुछ रूल्स दे दिए गए थे दैट राइटर हैज टू फॉलो दोज रूल्स एट एनी कॉस्ट. लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स है वो इस चीज़ को नहीं देखता कि व्हाट आर द प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स व्हाई द राइटर हैज फॉलोड. दे टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव यूजेज. वो डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं और प्रिस्क्रिप्शन की तरफ नहीं जाते. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इतना डेविएट उसने किया नॉर्म्स, और एंड वी यूज टू अप्रिशिएट कि इसने किस तरह डेविएट किया, हाउ ही हैज ब्रॉट इन्वेंटिवनेस और न्यूनेस इसने किस तरह लाई. This all was the result of 20th century works on stylistics by Fowler, Halliday and Kalpapa, who looked at relationships between social, contextual, cognitive and formal linguistic फीचर्स. उन्होंने कहा जी इन सब का आपस में बड़ा क्लोज कनेक्शन है. देयर वर ऑल्सो डिफरेंट अटेम्प्ट्स मेड बाय स्टाइलिशियंस टू इंटेरोगेट द लॉजिकल अजम्पशंस अंडरलाइंग स्टाइलिस्टिक्स. तो अब इसके अंदर जो बेसिक वर्क जो सबसे पहले काम किया गया था वो जैकबसन ने किया था, एंड आफ्टर जैकबसन देन वी हैव हैलिडे. इन लोगों ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है. अदर देन दैट अगर देखा जाए वन ऑफ हिज बेसिक जो हैलिडे की कंट्रीब्यूशन है जो इस टर्म के साथ ज़्यादातर एसोसिएट कर दी जाती है, दैट इज़ रजिस्टर. उसको हम रजिस्टर कहते हैं, और ये अगर देखा जाए तो ये मैंने आई हैव अंडरलाइंड इट आउट. अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जी रजिस्टर क्या है. फॉर हॉलीडे रजिस्टर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डायलैक्ट. आपको पता है डायलैक्ट इज समथिंग एल्स दैट डील्स विद स्टेबल एंड सिस्टमैटिक वेरिएशन विद इन अ लैंग्वेज, और डायलैक्ट इज नॉट ओनली जस्ट डीलिंग विद
रजिस्टर जिसे आप फंक्शनल डायलैक्ट करते हैं, देयर कैन बी रीजनल डायलैक्ट एज वेल। तो आपका रीजनल डायलैक्ट होता है, क्लास डायलैक्ट होता है, वो जेंडर डायलैक्ट्स होते हैं, ये वेरी करते हैं। लेकिन जो रजिस्टर है एक्चुअली डिस्क्राइब्स फंक्शनल यूजेज ऑफ लैंग्वेज, जो आपका फंक्शनल यूजेज होता है कि हाउ वी यूज सर्टेन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दैट वी हैव टू परफॉर्म। इसके अंदर आपके पास तीन बेसिक टर्म्स हैं, फील्ड, टेनर एंड मॉड। फील्ड पार्टिसिपेंट से डील करती है, सॉरी पार्टिसिपेंट्स किस चीज़ में किस थीम पे, किस सब्जेक्ट मैटर में बात कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है, उसे फील्ड कहेंगे। टेनर जो है वो आपके पार्टिसिपेंट्स से उनके स्टेटस के बारे में, उनके लिविंग स्टाइल के बारे में, उनकी लैंग्वेज की कमांड के बारे में, इन तमाम चीज़ों पे बात करती है। और मोड जो है हम किस तरह अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या वो स्पोकन है या रिटन है। Modern view of stylistics is more advanced in comparison to traditional because it explains the reasons behind the selection of certain choices. Moving on to last concept of style, that is linguistic concept. Linguistic approach to style helps us to analyze language scientifically. It restricts researchers to study style in an impersonal and objective manner. तो जितनी हमारी limitations थी जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में होंगी, वो हमने मॉडर्न और लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल में उन्हें दूर किया। एक चीज़ ये हम इसे साइंटिफिकली स्टडी करते हैं और हमने कहना शुरू कर दिया जी स्टाइल जो है वो कोई पर्सनल चीज़ नहीं, इट इज़ इम्पर्सनल, और हम इसे ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टडी कर सकते हैं। दिस अप्रोच डिफाइंस, स्टडीज एंड एनालाइजेस स्टाइल टेक्निकली बाय अप्लाइंग मेथडोलॉजी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। वी अप्लाई डिफरेंट tools of linguistics in order to understand style in a better way. Literature was traditionally appreciated non-technically and the critic depended on his superior vision and reader on his arbitrary good taste. लेकिन अब जो है but linguistic approach to style evaluates a literary text precisely. Both descriptive and evaluative linguistics are used टू रीच वैलिड रिजल्ट। हम उन दोनों के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वैलिड रिजल्ट हासिल करने के लिए। स्टाइलिशियंस एनालाइज टेक्स्ट एट द लेवल ऑफ फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। दे कैन ऑल्सो यूज मेटा लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टाइलिस्टिक्स टू एनालाइज द टेक्स्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर। और उसके अलावा यही नहीं, सिर्फ आप देखें जी फोनोलॉजी में हम साउंड डिवाइसेस की बात कर सकते हैं, सिंटैक्स में हम फ्रेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अलावा हम क्लॉजेस, क्लॉज कम्प्लेक्सेस की बात कर सकते हैं। देन वी कैन मूव टूवर्ड्स सिमेंटिक्स। मिसाल के तौर पे उन्होंने ऑपोजिट वर्ड्स कितने यूज़ किए, उसके बाद थीमेटिक रोल्स उन्होंने कौन से यूज़ किए। प्रैग्मेटिक्स में आप स्पीच एक्स पे आ सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट कुड बी एनालाइज्ड फॉर एनालाइजिंग द स्टाइल ऑफ एनी author. Lastly, linguistic approach to stylistics has provided the communicative power to researchers to evaluate isolated linguistic items and structures objectively by encompassing simultaneity of permanence and change of style. मीन्स के हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं तमाम लिंग्विस्टिक आइटम्स को, या जिनको हम जो डेटा में सिलेक्ट करते हैं सैम्पल के तौर पे, हम उन्हें एनालाइज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर there is any change of style for representation of female characters in all the plays of Shakespeare or in all the plays of Ibsen, या वही सेम स्टाइल है। यहाँ पर अगर आप दूसरी बात करें कि क्या विक्टोरियन राइटर्स जो हैं क्या उनमें कोई परमानेंस ऑफ स्टाइल है या चेंज ऑफ स्टाइल है, तो हम ये तमाम चीज़ें इन तमाम चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। So in this video we have talked about what is style, why it is so vague, इसके साथ जितनी terminologies associated हमने उनके ऊपर बात की। उसके अलावा हमने controversial aspects पे बात की, इसकी roots and predecessors की बात की। Other than that we talked about traditional, modern and linguistic concept of style. If you have any question or if you have any query, you can type in the comment box. We will try to resolve your issues, but for that you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.